Welcome to e-learning classes of Second Hearts. Today is your accountancy turn, and in this turn I am going to start a new chapter, that is books of original entry journal. This one is chapter number 9. This is your 26th lecture of accountancy, and from this lecture I am going to start chapter 9, that is books of original entry journal. This is the most important chapter of the numerical portion. By this chapter you will come to know how to post the transaction into journal, and it means how to generalize the transaction. You will learn from this lecture only, from this chapter only. Now the topics which I am covering in this lecture is meaning of journal, functions of journal, format of journal, steps and rules of journalizing. Means theoretical portion of this chapter I am covering in this lecture, and from the next lecture I will be starting with the numerical portion of this chapter. Now see the first thing, that is meaning of journal. What is meaning of journal, beta? The books in which a transaction is recorded for the first time from source document are called books of original entry. Books of original entry are the books in which we are recording all the transactions first time फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. सोर्स डॉक्यूमेंट से जब फर्स्ट टाइम हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो बेसिक बुक होती है, दैट बेसिक बुक इज़ नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और ये बेसिक बुक, सबसे फर्स्ट जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बेसिक बुक है, दैट इज़ योर जर्नल. जर्नल आपकी सबसे फर्स्ट बेसिक बुक है, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को फॉर द फर्स्ट टाइम. और दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन दिस बुक, और इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में रिकॉर्ड होते हैं. अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस these transactions are recorded, and journal is one of the basic book of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order according to the principles of double entry system. Double entry system chapter आपने पढ़ा था in your Zoom doubt session. I have explained you the principle of double entry system. और इसमें जो जर्नल में जो भी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को या जर्नलाइज करते हैं ट्रांजेक्शन को, इट इज़ एज़ पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एज़ पर द नेचर ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. Now see, when the size of business is large, you see business is of two types. One is a small scale business, other one is large scale business. When you are running a small scale business, then you can generalize all the transaction in one book, that is journal. But if the size of business is large, then it is not possible to record each and every transaction in journal. So the journal is subdivided into number of sub journals known as special purpose subsidiary book और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बेटा जब स्मॉल साइज़ का बिज़नेस है तो आपके लिए एक बुक सफिशेंट है, दैट इज़ जर्नल, जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं इन द जर्नल एंट्री फॉर्म. लेकिन व्हेन यू आर रनिंग अ लार्ज स्केल बिजनेस, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एक बुक में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लें. यू नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन सम अदर बुक्स ऑल्सो. और वो जो अदर बुक्स हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, दीज अदर बुक्स आर नोन एज स्पेशल पर्पज सब्सिडियरी बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड in a separate manner in a special purpose subsidiary book or books of original entry. Each type of transaction is recorded in a separate subsidiary book. और सारे ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं. द सब्सिडियरी बुक मे बी एज फॉलोज. और ये जो सब्सिडियरी बुक है आफ्टर जर्नल, जो और सब्सिडियरीज बुक हैं जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, इट इज़ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. ये सारे चैप्टर्स आप आगे पढ़ेंगे, ये आपके चैप्टर्स हैं. आप इस समय बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हाउ टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन्स इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट. ये आप सीख रहे हैं फ्रॉम दिस अकाउंटिंग. 11th क्लास में जो अकाउंटेंसी है वो बेसिक अकाउंटिंग है बेटा, जो आपको पूरी तरीके से सिखाती है कि हम किस तरीके से अकाउंट्स को मेनटेन करते हैं. तो उससे ही मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो सिर्फ हम जर्नल बनाते हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स को एक में रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट इज़ योर जर्नल. लेकिन अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके पास देयर आर so many transaction per in a day, it is not possible to record each and every transaction in only single book, that is journal. तो उसके लिए जो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो हम उसके लिए सेपरेट बुक्स को मेंटेन करते हैं, और उसकी दैट बुक्स आर नोन एज सब्सिडियरी बुक्स. वो जर्नल के बाद जो बुक्स होती हैं वो सब्सिडियरी बुक्स कराती हैं. इसमें सारे ट्रांजेक्शन को सेपरेटली नोट करते हैं. और ये सब सब्सिडियरी बुक कौन कौन सी बेटा? कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर.
नाउ सी, अब ये चैप्टर आपका जर्नल का है, तो जर्नल आप इसमें पढ़ रहे हैं. नाउ सी व्हाट इज़ जर्नल. जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. जर्नल वो सबसे फर्स्ट ओरिजिनल बुक है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करते हैं जैसे वो टेक प्लेस कर रहे हैं. दस द जनरल प्रोवाइड डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. इट मीन्स जर्नल में डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसमें डेबिट साइड में अमाउंट रिकॉर्ड हो जाती है और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाती है. तो जर्नल वो बेसिक बुक है जिसमें हम आफ्टर सोर्स डॉक्यूमेंट से जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं उस बेसिक बुक को हम बोलते हैं जर्नल. और जर्नल में जैसे वो ट्रांजेक्शन हैपन हो रहे हैं, जिन डेट्स में हैपन हो रहे हैं, इट इज़ रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. किस में नोट करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट करते हैं, डेट वाइज नोट करते हैं और उसके बाद हम उसमें डिटेल्स ऑफ अकाउंट बताते जाते हैं. अगर डेबिट हुआ है तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट हुआ है तो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. नाउ सी द फंक्शंस ऑफ जर्नल. जर्नल क्या क्या फंक्शंस प्ले करता है? टू कीप अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. जर्नल जो है सारे ट्रांजेक्शन्स का एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करता है. क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब सीक्वेंस वाइज मेंटेन करता है. मंथ अप्रैल है तो अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स को फर्स्ट रिकॉर्ड करेगा, देन मई के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेगा, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को. इट मीन्स इट इज़ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देन to analyze each transaction into debit and credit aspects by using double entry system of book keeping. और इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जर्नल में वो आपके सिंगल एंट्री बेसिस पर नहीं है, ये डबल एंट्री बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड होते हैं. मीन्स what is debited it has to be credited. one transaction effect two types of account. ये मैंने अभी आपको पीछे अकाउंटिंग इक्वेशन में टी शेप अकाउंट में बताया भी था. इन सेम मैनर आप जर्नल में एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं. तो सेकेंड फंक्शन ऑफ जर्नल क्या है बेटा? टू एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम. ये मैंने अभी आपको बताया. डबल एंट्री सिस्टम पे अकॉर्डिंगली मतलब मीन्स वन अकाउंट इज़ डेबिटेड तो दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है. डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को. नंबर 3 टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर. देन जर्नल के बाद जो सेकंड बुक बनती है वो लेजर होती है. लेजर में आप सेपरेट अकाउंट बनाते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का. तो जर्नल के एंट्रीज़ को के थ्रू ही लेजर को पोस्ट किया जाता है. तो आफ्टर दैट जर्नल के बेसिस पर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं. नंबर 4 to maintain the identity of each transaction by keeping a complete record of each transaction at one place on a permanent basis. जर्नल में अब सारे ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं और उसके बेसिस ताकि हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये ट्रांजेक्शन इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का है, इस मंथ का है, इस डेट का है, सो दैट वी कैन क्लासीफाई दिस ट्रांजेक्शन और परमानेंट बेसिस पे उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. जर्नल का फॉर्मेट क्या है? देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल. जर्नल में 5 कॉलम है. नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, नंबर 3 लेजर फोलियो, नंबर 4 अमाउंट डेबिट रुपीज़ एंड नंबर 5 अमाउंट डेबिट इन रुपी. अमाउंट ये दैट विल बी अमाउंट क्रेडिट इन रुपीज़. ये डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा बेटा. अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट ये रुपीज़ में इसमें आ जाएगा तुम्हारा. तो ये 5 कॉलम्स आर देयर. नंबर 1 इज़ डेट, number 2 is particular, number 3 is ledger folio, number 4 is amount debit and number 5 is amount. ये आपका क्रेडिट है. विच क्या है ये आपका? इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस. ये क्रेडिट है आपका अमाउंट. तो अमाउंट डेबिट एंड देन अमाउंट क्रेडिट. तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. 5 कॉलम्स आर देयर. 1 अमाउंट डेबिट एंड अदर 1 इज़ अमाउंट क्रेडिट. नाउ सी द फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया डेट. डेट इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ जर्नल. द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन. इसमें डेट कॉलम में वी आर रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन. हम ट्रांजेक्शन की डेट को रिकॉर्ड करते हैं जिस डेट में ट्रांजेक्शन को एंटर कर रहे हैं. द ईयर एंड द मंथ इज़ रिटन ओनली वंस टिल दे चेंज. अब आप 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वन टाइम यू ओनली नोट डाउन अप्रैल. देन अप्रैल 1 में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, 5 में हुआ, 7 में हुआ, 10 में हुआ, 12 में हुआ, 30 अप्रैल तक एक बार आप अप्रैल लिखेंगे जब तक मंथ को चेंज नहीं हो रहा. बार बार यू हैव देयर इज़ नो नीड टू राइट अप्रैल 1, अप्रैल 6, अप्रैल 7, अप्रैल 10, अप्रैल 12, 15 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन मंथ चेंज हो जाएगा तो वन टाइम यू नोट डाउन दैट मंथ नेम और उसके बाद आप उनके डेट्स को पोस्ट करते चले जाते हैं. नंबर 2 पर्टिकुलर मैंने अभी बताया कि 5 कॉलम्स हैं उसमें. डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. पर्टिकुलर ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट. एक ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है. आउट ऑफ विच 1 अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड द अदर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड. ये आपको मैंने पिछले अभी एग्जाम्पल भी बताया था टी शेप अकाउंट में कि फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 20,000.
ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, इट मीन्स दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो आपका परचेज अकाउंट हुआ क्योंकि आपने गुड्स परचेज करा है, और दूसरा आपका क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि आपने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करा है। इट मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट एट अ टाइम, ठीक है। तो वन अकाउंट इज़ डेबिटेड, तो अदर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट एंड द वर्ड DR इज ऑल्सो रिटन टूवर्ड्स। डेबिट अकाउंट पहले लिखा जाता है, फर्स्ट कॉलम आपका डेबिट है और उसके साथ आपका DR वर्ड लग जाता है, और दूसरा वाला कॉलम क्या है आपका क्रेडिट है, उसके साथ आप CR वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा द क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट्स विद द वर्ड टू। जब फॉर एग्जांपल आप कोई भी जर्नल कर रहे हैं, तो आप जर्नल में आपने मान लीजिए मैंने आपको एक ट्रांजेक्शन बोला, दैट ट्रांजेक्शन इज़ परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस है, परचेज में गुड्स को परचेज करा है आपने, तो पर गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज़ आउट। कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और परचेज में आपके गुड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, एंड देन उसके नीचे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे टू कैश अकाउंट 20,000। ये आपको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल करना बताऊंगी पूरा कि हाउ टू नोट डाउन दैट एंट्रीज़। तो वही चीज़ यहाँ पर है आपका कि पर्टिकुलर में आप नोट करेंगे किस जो अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया परचेज गुड्स ऑन कैश ₹20,000, गुड्स कम्स इन, कैश गोज़ आउट, कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज़। और उसके अलावा जो आपका परचेज अकाउंट नॉन एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो उसमें आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज इंक्रीज़ हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इन द जनरल एंट्री नोट डाउन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। फर्स्ट कॉलम इज़ डेबिट कॉलम, अनदर कॉलम इज़ क्रेडिट कॉलम, और 2 से वो स्टार्ट करते हैं। दैन उसके बाद आप एक मार्जिन ड्रॉ कर देते हैं नीचे, ताकि आप एक ट्रांजेक्शन को या एक जर्नल एंट्री को दूसरे जर्नल एंट्री से डिस्टिंग्विश कर सकें। देन उसके बाद नरेशन आता है। जैसे हम वो जर्नल एंट्री लिखते हैं उसके नीचे हम उसका नरेशन लिख देते हैं कि हमने क्या करा है उस ट्रांजेक्शन में, या उस जर्नल में हमने जर्नल एंट्री में क्या करा है वो नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बोला आपका परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो आप 20,000 का गुड्स परचेज करा है तो नरेशन में आ जाएगा गुड्स परचेज फॉर ₹20,000। गुड्स को परचेज करा इन कैश फॉर ₹20,000 इन नरेशन में मेंशन कर देंगे। तो आफ्टर ईच एंट्री आ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल इज़ गिवन। दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कॉल्ड नरेशन, और एक्सप्लेनेशन क्या कहलाती है, नरेशन कहलाती है। देन नेक्स्ट थर्ड इज़ लेजर फोलियो और LF। ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट। जर्नल से आप एंट्रीज़ को किस में पोस्ट करते हैं, लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। उसमें लेजर में आपका पेज नंबर गिवन होता है, वो पेज नंबर आपका लेजर फोलियो नंबर कहलाता है, जिसके थ्रू आप उस लेजर का वो पेज नंबर ओपन कर लेंगे कि कहाँ पे आपने इस जर्नल को पोस्ट करा है। क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन है बेटा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि किस पेज पे किस ट्रांजेक्शन को करा है। दैट्स वाई लेजर कॉलम इज़ मेंटेन, जिसमें आप वो पेज नंबर लेजर का जिस पेज पे आपने पोस्ट करा है। फॉर एग्जांपल आपने किसी ट्रांजेक्शन को पेज नंबर 20 पे पोस्ट करा है, तो लेजर में आप 20 लिख देंगे, LF में आप 20 लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जर्नल जो है पेज LF की यानी लेजर की 20 पेज नंबर पर मैंशन है। इज़ इट क्लियर बेटा? ये इसलिए होता है कि टू ईज़ द ट्रांजेक्शन, ईज़ करने के लिए होता है, ताकि हमें जब भी कोई भी ज़रूरत है नेसेसिटी, तो पूरे बुक्स को खोलने के बजाय वी विल सी द पेज नंबर, और लेजर को वो पेज नंबर ओपन करके वी कैन सी द ट्रांजेक्शन। Then number 4 amount debit. In the fourth column the amount of the account being debited is written. जो भी अमाउंट डेबिट हो रही है हम उसको फोर्थ कॉलम में नोट कर देते हैं, और फिफ्थ कॉलम में जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है हम उसे नोट कर देते हैं। तो these 5 columns are maintained in the format of journal. Now see steps of journalizing. Number 1, before recording a journal entry, it is essential to analyze our transaction in order to determine the 2 account which are affected. मैंने अभी बताया आपको कि जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हुए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, सो दैट यू कैन कम टू नो कि किसको आपको डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। Then number 2, it is not necessary to use the word account after the personal account. अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके आगे आपको अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो राम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, अकाउंट नहीं लगेगा, बल्कि आपका जो जिससे आपने गुड्स परचेज़ करा है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसमें आपका राम हो जाएगा। राम के साथ उस अकाउंट वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है, किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट नेसेसरी। Then number 3, see the third point बेटा।
after every journal entry a line should be drawn in a particular column so that each entry is separated from the preceding one. जब journal entry हम कर लेते हैं then we note down narration and after narration we draw a line so that एक journal entry दूसरी अपनी preceding entry यानी पहले वाली entry से क्या हो जाएगी, distinguish हो जाएगी. Number 4, at the end of each page both the debit and credit column are totaled up just in front of each other. These totals must be equal because the amount debited in each entry equals the amount credited. ये मैं आपको अभी कराऊंगी जब जर्नल एंट्री तो के क्वेश्चंस तो उसमें बताऊंगी. जैसे आपने जर्नल करा, एक पेज पे अगर आपकी 4 जर्नल एंट्रीज आ गई तो एट द एंड ऑफ द पेज आप दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद यू विल मेंटेन टोटल. आप टोटल ऑफ दैट पेज उसको आप लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, या लिख देंगे उस टोटल को टोटल कैरी फॉरवर्ड. और फिर आप नेक्स्ट पेज पर, और ये टोटल आपका डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का इक्वल होना चाहिए, और आप उसको लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड. हर पेज पे अगर आपकी एक क्वेश्चन 4 पेजेस पर आया तो यू हैव टू डू टोटल ऑन 4 पेजेस. फर्स्ट पेज का टोटल करेंगे, उसको आप नीचे लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे आप ऊपर सबसे फर्स्टली स्टार्टिंग में नोट करेंगे टोटल बॉट फॉरवर्ड, बॉट डाउन या बॉट फॉरवर्ड, और वो जो अमाउंट आपकी कैरी फॉरवर्ड हुई थी उसको आप इधर नोट कर देंगे. कैरी फॉरवर्ड मतलब आप किसी चीज़ को नेक्स्ट पेज पे कैरी करा रहे हैं तो इट इज़ नोट एज CD या कैरी फॉरवर्ड. और उसके अलावा जो आप और जो बॉट फॉरवर्ड का मतलब प्रीवियस वाले अमाउंट को आप नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? तो उसको बॉट डाउन कर दिया या BD कर दिया या बॉट फॉरवर्ड कर दिया, और उसका CF कैरी फॉरवर्ड लिख देंगे और टोटल लिख देंगे. और फिर नेक्स्ट एट द एंड ऑफ ईच पेज की टोटल करने के बाद आप कैरी फॉरवर्ड लिख देंगे, और एट द बिगनिंग ऑफ अदर पेज उस टोटल को आप बॉट फॉरवर्ड कर लेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज. इज़ इट क्लियर बेटा? और अभी आप जर्नल करेंगे तो मैं उसमें बताती भी जाऊँगी कि कैसे कैसे करना है. ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स थे जर्नलाइजिंग के, हाउ टू जर्नलाइज ट्रांजेक्शन. और जर्नल एंट्री टोटली इसके ऊपर भी बेस करती है कि हाउ वी आर जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन. और जब तक आपको ये बेसिक रूल्स जर्नल एंट्री के नहीं पता होंगे, देयर इज़ a very much possibility of doing the things in a wrong manner. इसलिए इसके फॉर्मेट लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है. in this lecture I am explaining you the format and how to post the things in the format, and from the next lecture I will tell you how to do the journal entry. Thank you बेटा, have a nice day. बुक्स में से पढ़िए, your exams are coming. आपको अभी सिलेबस बता दिया जाएगा. as soon as आप वर्क अपना कंप्लीट करते चलिए and start learning up the things so that एग्ज़ाम के टाइम पे आपका प्रॉब्लम ना हो. Have a nice day बेटा. Thank you.